trigonometrical ratios of 45 degree. In trigonometry, first I am taking this one, extra formulas later. आज ये थर्ड डे है मैंने आपका नाम पिछली बार तक आपका नाम, इससे पहले के जितने भी इन माई 34 years कैरियर, ऑल द फॉर्मूलाज वर रिटन इन 1 hour कंप्लीटली. इस बार मैंने आपके ये 3 दिन ले लिए इसको कंप्लीट करने में. और जो द न्यू थिंग इज इन दिस कि जैसे यस्टरडे आई टॉट यू, नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, tan 30, tan 60 means these all by the help of the equilateral triangle. उसमें 30 and 60 में equilateral triangle, and this इसमें isosceles triangle, isosceles triangle is required. Now means sin 30 देखिए is equal to cos 60 is equal to what was that 1/2. Now sin 60 is equal to now cos 30 is equal to what was that, that is √3/2. Now tan 30 is equal to now cot 60 is equal to, it was 1/√3, and this is tan 60 is equal to cot 30, that was your आपका √3. ऐसे आपका ना देखो cosec 30 equal to sec 60 is equal to what 2, and now this is cosec 60 degree pardon equal to now sec 30 degree is equal to what, that is 2/√3. These all values if you want to find out, then it will be only possible by the help of an equilateral triangle की help से, जो yesterday I told you. Today only I am telling about 45 degree means see we have to find out sin 45, now cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 and upper cosec 45. These all 6 will be possible by isosceles triangle only. Is it clear? Fine. This is A, B, C. This. So now triangle ABC is an isosceles right angle triangle in which BC is equal to BA is equal to A. See sir. Now this one is also A and this one is आपका देखो A. So now it will be your 45. It will be now say ये आपका कितना हो जाएगा 90 minus 45 means it is also 45. In a triangle, the sum of all angles is equal to 180. This is the triangle sum property. Is it clear? Fine. Didi? Okay. Ninna तो नहीं आ रही. Now first we have to find out hypotenuse. Now look at this. So now in. So now यहाँ पे एक बार angle A is equal to angle C is equal to 45 degree. You can write here isosceles triangles property. स्पेसिफिकेशन होना चाहिए क्लियर से ना करो. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC using या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दैट इज आपका AC स्क्वायर एंड बेस इज व्हाट, दैट इज BC स्क्वायर एंड प्लस नाउ दिस BA स्क्वायर. छोटी छोटी चीजें सीखने की जनरली टीचर भी क्या करते हैं, AB स्क्वायर लिख दो, क्योंकि दिस इज द होम पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट.
always we started our journey, either we are going to school, either we are coming in coaching, either in any अपना place we are going, but we are always starting our journey from our home. So this is also the home point. यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं. Sharp, clear? So this AC square, now square equal to BC is what? A का square, and now this plus A square. Now AC square equal, this is square sir. 1A square, 1A square is 2A square. If you are going to remove the square from one hand, the another hand must come inside the square root, but before that you have to put plus and minus sign. So now अब इसको change कर दीजिए. A square means A into A. So after making a pair, one A will come out. So root 2A. This. So now you find out this. G. Pardon? Yes, yes, yes. Please argue with me. Yeah. सर ये तो बाहर निकल गया ना. ए तो बाहर है, देखो रूट तो इसके ऊपर दिखा है. पहले नंबर लिखा जाता है. फर्स्ट यू विल राइट सर, देन ये लिखा जाएगा. इज इट क्लियर? इसमें वेरिएबल है. ए रूट 3 नहीं लिखते, रूट 2A लिखते हैं. समझ रहे? नंबर से अगर लिखना होता तो 2 रूट 2, 3 रूट 3 ऐसे लिखते हैं. गॉट इट? बिल्कुल. आपकी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. नाउ अब देखिए. नाउ I will continue this. Now see sir. Now in right angle triangle, now देखो A B C. देखो this is. So now we are going for sin 45. You see now sin theta is equal to now perpendicular over hypotenuse. Formula first sir. This is the landmark. जैसे होता है ना, ऐसे ये भी आपका देखो फॉर्मूला बाय हार्ट करिए. And I said to sin theta, cos theta, tan theta. Down of this you write cot theta. Now this is sec theta and this is cosec theta. And this is पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लिख दीजिएगा. sin theta perpendicular by hypotenuse, cos theta base over hypotenuse, tan theta आपका ना देखो perpendicular base, cot theta base over perpendicular, sec theta hypotenuse of base, and cosec theta hypotenuse of base. So now this. So applying this one here, so sin 45, that is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is what? That is A. And hypotenuse is what? That is आपका देखो root 2 by A. ये second से. Now see, you see the table. Now you are getting this. Sin 45 is equal to 1 upon root 2. And the value of sin 45 and cos 45 both have the same value, 1 by root 2. Now sir, I am going for the second one. Now cos 45. So now see, cos theta is equal to base over hypotenuse. So you will write here base over hypotenuse. Base is what? This is A. Now over hypotenuse is what? That is. So now it is going to be cancelled. See, it means sin 45 equal to cos 45 and both have the value 1 upon root 2. Got it? Sure? Now, third, tan 45. Tan theta. Here all, देखो here, all theta is equal to 45 degree A. Confirm this one. Because this isosceles right angle triangle is only made to find the trigonometrical ratio of 45. Either that is sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cot 45, whatever is there. Now tan 45. So tan theta is what? See, perpendicular of base. So this is perpendicular of base. Perpendicular is what? That is आपका ना देखो this is this BA over. Now this BC, that is A upon A. A1 ja E. So you see 1. Are you getting? So now cot 45 is equal to, now see cot 45. देखो this cot theta is क्या? It is the reciprocal. So now tan theta is equal to 1 upon cot theta, or cot theta is equal to 1 upon tan theta,
or tan theta into cot theta is equal to 1. Either any you can remember. So now, इसका स्वीट फॉर्मूला से चेंज है। जी हाँ, यही तो है, ये तो चलता था, फर्स्ट क्लास चलता था सर। तो ना cot 45 is base over perpendicular. Now see this base over perpendicular. देखिए आपका नाम this, ये देखिए, तो base is what? A by A. This is what. So now it means now tan 45 equal to cot 45 equal to 1. Sure? Now then we are going for cosec 45. अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं then we have to go for sec 45. देखो sec theta, see sec theta, hypotenuse over base, hypotenuse over base, hypotenuse what? AC over base is what? BC. Hypotenuse was root 2a upon, now ये खल्ला root 2. Now you go for cosec 45 degree. This is base of, sorry. This is hypotenuse over perpendicular. So this is hypotenuse over perpendicular. Hypotenuse is what? Root 2a. And perpendicular is again a. This is also khallas. Now देखो this is. It means, now this sec 45 is equal to cosec 45 is equal to root 2. फर्स्ट टाइम इन माई कैरियर ऑफ 34 ईयर्स, वैसे मैं इसको बता देता था बट मैंने कभी इसको ये ट्राइंगल्स बना करके मैंने कभी काम नहीं किया. द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ये जो मैंने कल आपको बताया, आई हैव मेड हियर द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन स्पेसिफिक फॉर दिस 40-45 which is particularly I had made the isosceles triangle here. Is that clear? Please do it. Now see sir, it was 0 degree, now 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. I am going to be reminded you. I am just after deleting this one. So now this, the first one is sin 0 is 0. Now this is 1 by 2. This is 1 by root 2. Root 3 by 2. It's 1. When you will come in a reverse. This is reverse. That will be the value of cos. So this you will put here, 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 and this will be same here. And how you have to make these trigonometrical ratios of some spatial angles, ये भी मैंने आपको बता दिया काउंटिंग लिख करके, अगर आपको याद होगी होल नंबर्स पे. आपने वीडियो अगर घर जा करके देखा है तो ना दो. वाई एम टेलिंग दिस एक्स्ट्रा टू यू ऑल. कई बच्चे होते हैं जिनका दिल नहीं भरता, मन नहीं भरता है, उनका समथिंग आई जस्ट वांट द एक्स्ट्रा थिंग, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है मुझे. तो एक्स्ट्रा सीखने के लिए देन आई हैव टेकन द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स फॉर फाइंडिंग 60 and 30. 60 and 30 में देखो ये all the values जितनी भी आएंगी, all the values related to these all required, these both require an equilateral triangle. Yesterday's video, and this only 45 will be in front of you. अब टीचर बेसिकली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई सेड टू यू, आप इसको चैनल में जाके कल जाके देखा आपने, इन अदर चैनल्स देखा, देखना चाहिए. बाइजूस में देखो, आकाश में देखो, आपका दुनिया भर के, तब कंपेयर करो ना कि यू आर सिटिंग इन ए वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशन और वहाँ उनसे ज़्यादा अगर मेरी सही अप्रोच है तो कमेंट कीजिए. फाइन. अब मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले के लिए जा रहा हूँ. एनी आर्ग्यूमेंट, एनी क्वेरीज सर? नो. फाइन. अब देखिए व्हाट आई हैव रिटन ओवर दिस वेरी एक्स्ट्रा फॉर्मूलास. स्कूल वाले इतनी मोटी किताब पकड़ा देते हैं, ये देखो टेक्स्ट बुक के साथ. एंड आई होप सो दैट आपका नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस बुक विल बी, जिनको खाली पास होना है वो तो आपका खाली एनसीईआरटी पढ़े
और जिनको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल दोज हु हैव टू जनरेट आगे मेरे हिसाब से दिस इज वर्थ कॉस्ट ऑफ 375 रुपीज की किताब ये है एंड दिस एडिशन विल बी 8th रिवाइज एडिशन 2015 745 का नया वर्जन नया वर्ड उसके साथ कहीं वो दूसरी वाली एमसीक्यू लेने की जरूरत ही नहीं नहीं, वो उसी के साथ है। ना ना आप मत लीजिए उसके साथ आई क्या ये तो चोचले हैं स्कूल्स के बिल्कुल मत लीजिए एमसीक्यू नहीं चाहिए हमें खत्म वो नहीं एडिशन में जब ली थी तो उसी के साथ है। 750 यहाँ होता है देख प्राइस इज इंक्लूडेड भाई टुडे द कॉस्ट इज आपका विच आई एम शोइंग यू 375 एंड यू आर सेइंग आपका 750 की किताब है तो आपका देखो दिस इज 5 आपका 14 7 नाउ देखो दिस 6 अब आप देख लीजिएगा ना दैट्स व्हाई मैंने इसीलिए बोला व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस एक्स्ट्रा फॉर्मूला बिकॉज फॉर दिस बुक एंड फॉर दिस बुक यहां पे जो इस्तेमाल मैं करूंगा आपके लिए अभी 10th के लिए मेरे हिसाब से मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 बुक से आप पढ़ेंगे थ्रू आउट द ईयर में क्योंकि दिसंबर से व्हेन यू कम फॉर प्रैक्टिस फॉर बोर्ड एग्जाम either that is a bloody hell आपका होम बोर्ड एंड whatever is there that is the decision of the government लेकिन आपको गवर्नमेंट का डिसीजन आपको अपना कैरियर बिल्डअप करना है गवर्नमेंट कुछ नहीं करके रोटी नहीं देती गवर्नमेंट रोटी भी दे देगी तो जैसे कोरोना पीरियड में हुआ 5 किलो आटे में परिवार नहीं पालता है रिकॉर्डिंग माय पॉइंट सो नाउ दैट्स ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला अब आपका देखो ना एक्स्ट्रा फॉर्मूले में नाउ द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज देखो sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. कई बार हमने बोला प्लीज फाइंड आउट साइन आपका देखो 60 और प्लस 30 की कई बच्चे इसको क्या कर देते उन्होंने कहा सर साइन 90 कर देते एंड साइन 90 की वैल्यू 1 कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ठीक है लेकिन पहले कॉम्पिटिटिव लेवल तभी तो बनेगा जब बेस क्लियर होगा ना और सब सही है तो देखिए पढ़ना था उधर तो नहीं आ रहा अभी ला रहे हैं प्लीज प्लीज थैंक यू आप नहीं गोली मत देना है भाई अरे भाई बस जितनी जल्दी आओगे ना आप मैं उतनी जल्दी घर जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में 2 जीव और हैं यहाँ आंटी वाली जीप तो दुकान में होगी वो जो है दूसरा वाला तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये देखो ये फॉर्मूला प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस और याद करने की स्ट्रेटजी देखिए इसको अगर आप कंबाइन लिखेंगे देखो साइन देखिए ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू देखो आपका ना साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस ए साइन बी ऊपर प्लस वाला प्लस देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये साइन ए प्लस बी का हुआ नीचे वाला साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस क्लियर नाउ देन द थर्ड वन फॉर्मूला इज cos a plus b cos a plus b is equal to देखो ना cos a cos b minus sin a sin b and fourth cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b प्लस वाले में cos में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है देखिए अब ये भी क्यों बता रहा हूं अब इसकी डिटेल फिर बता ना 10 a plus b is equal to now 10a plus 10b over 1 minus 10a into 10b देखो सी सर प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस and this 10a 10b will be related to both each other in a multiplication format now so 10a plus 10b is equal to 10a plus 10b over 1 minus 10a into 10b 10 a minus b is 10a minus 10b over 1 plus 10a
into 10b. In 10a minus b's formula, ऊपर माइनस नीचे प्लस एंड बोथ विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. तो देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले ये एक्स्ट्रा हो गए. देन साइन 2 थीटा इससे करो, देखो 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा का इट इज नोन एज योर मल्टीपल फॉर्मूला. अगर 10th का बच्चा इतना नहीं पढ़ सकता तो फिर वो क्या कर सकता, बुरा मत मानिएगा. आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग से इवनिंग से आई एम जस्ट लुकिंग. आपका देखो ओ यहाँ नीचे देख रहा था, आपकी उम्र से भी छोटे बच्चे सिगरेट फूक रहे थे स्कूलों में. और फर्स्ट क्लास जब उनके मुंह से गालियां निकलती हैं तो सरकार को नहीं सुनाई देते हैं कि इन गधों की वजह से पढ़ने वाले बच्चे का भी कैरियर डाउन हो रहे हैं. बहुत क्लियर ना. तो दिस cos 2 theta has so many formulas, but still I am writing here only 3 according to your R.D. Sharma sir, R.S. Agrawal, आपका मंजीत सिंह सर, जो भी आपका NCERT एग्जाम्पलर्स एंड आपका दिस विनेश दिनेश, आपका ना so many books are here. ये बल्कि टुडे आई हैव आल्सो द एडवाइजर आपका नाउ एज पर न्यू सिलेबस. तो सो मेनी बुक्स आई हैव केप्ट एंड दिस इज आपका देखो नाउ कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज R.K. बंसल एंड ऑल दिस. नाउ cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. बेस जब आपका बहुत मजबूत होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड इज. अब ये जो आपका देखो ये जो फॉर्मूले आपके मल्टीपल आ रहे हैं ना, दीज आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले. आप कहेंगे कैसे? अब ये मैंने क्यों बताया, देखो अभी व्हाट आई सेड टू यू कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एनसीईआरटी सेज बस. लेकिन एक्स्ट्रा बुक सेज उसने क्या दिया, नहीं उसने क्या दिया, प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75. ये देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 105. ये देखिए आपका नाम इज इट क्लियर. तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120. ही इज आल्सो सेइंग आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150. ऐसे cos 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 10 10 10 10 cot cot. उस समय क्या करेंगे, अरे हमारे तो सिलेबस में नहीं है. अरे R.D. शर्मा की 304 775 रुपए की किताब खरीद के 750 के फॉर्मूले एक्स्ट्रा नहीं पढ़े तो क्या फायदा. इज इट क्लियर. अब आप कहेंगे सर देखो सपोज द क्वेश्चन इज, अब इसी में मैं क्वेश्चन समझ रहा हूं. देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ साइन 75. किसी ने आपको बोल दिया table जो which I have generated for you and in your book, that is only for 0 degree 30 degree 45 degree 60 90. 75 कहाँ से लाऊं, 75 है ही नहीं. तो चिंता करने की बात नहीं. तो ना दो साइन 75 इज इक्वल टू, देखो यू विल राइट साइन 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 भी आप लिख सकते हैं. ए मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए. वैसे तो नहीं भी करते तो कोई क्या आफत थोड़ा नहीं, कोई आपको बता नहीं रहा तो तब भी क्या बजर थोड़ा गिर गया. इज इट क्लियर. तो ना देखो दिस, तो वेयर देखिए ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू आपका देखो 30 डिग्री. तो अब आपका देखो फॉर्मूला अप्लाइड. खाली बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन न डाले ना परिवार पे, ये किताब खरीद लो, उसके लिए जब किताब खरीद रहे सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंग बनाओ. मेरा तो ये कायदा रहता. बाकी देखो अभी हो गया फॉर्मूला अप्लाइड. फॉर्मूला देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल, देखो नाउ यू राइट साइन ए कॉस बी. आपका देखो ना प्लस कॉस ए साइन. दोनों ए इज व्हाट 45 एंड बी इज व्हाट 30. साइन ए प्लस बी. तो देखो अपना इट मीन्स इसको अगेन यू विल टाइप हियर साइन 45 प्लस 30. व्हाट इज दैट? That is for finding value sin 75. तो देखो sin 45 डिग्री cos 30 sin A cos B A B plus cos 45 and sin 30. अब देखो sin 45 is what 1 upon root 2. Cos 30 is what root 3 by 2.
Now cos 45 is what? 1 upon root 2. Sin 30 is what? 1 upon 2. तो ना रूट 3 वन जा रूट, यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. तो रूट 3 वन जा रूट 3 बाय 2 रूट 2. दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स सॉल्ट 9th को भी याद करिए. नाउ देखो दिस इज 1 upon 2 रूट 2. Mixer. This is the root. So when you are going to find out the value of this root 2, that is coming on 1.414. Means that is not a perfect number. So that is solved. Yes. Now, if the bases are same, now this bases are, ले तो रहे हैं आप LCM. Now देखो, bases are same. Same numerator you have to write. ये भी 2 root 2, ये भी 2 root 2. तो 2 root 1 जा, 1 root 3 सा. Now देखो plus 2 root 2 1 जा, 1 1 जा 1. तो देखो, it means कायदे से sin 45 की जो वैल्यू आती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. क्लियर. लेकिन ये आपकी 100% आपका आंसर सही है. लेकिन बिकॉज इन 9th क्लास यू हैव रेड रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर. खाल निकाल दो सवालों की, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तभी पता लगेगा कौन बेटर है. अब ये तो बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है, ये मेहनत तो हमें करनी. देखो दिस मोनोमियल बिकॉज 2 and root 2 they both are attached with each other by multiplication sign here. तो ना अब इसकी जरूरत नहीं है. we have to remove this third from here, that's why we do rationalization. आपका नाम तो ना देखो, तो दिस इज रूट 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 से आप डिवाइड कर दीजिए. अच्छा, तो रूट 3 रूट 2 जा बोथ आर सॉल्व. तो नाउ दैट इज द रूट 6 प्लस दिस इज रूट 2 1 जा रूट 2 2 इनटू रूट 2 कंप्लीट 2. तो नाउ देखो दिस रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4. कायदे से sin 75 की वैल्यू ये होनी चाहिए. लेकिन आंसर अगर आपका ये भी है तो दैट इज 101% एक्यूरेट. तो दैट्स व्हाई आपको बोल दिया साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल. अरे यार ये तो सर ने बताई नहीं. सर को पूछोगे कि तो ये तो तुम्हारे सिलेबस ही में नहीं है, तो मैं तो क्लियर इसी निकल सर या आर.डी. शर्मा सर या आर.एस. अग्रवाल सर या इतनी किताबें क्यों लगा रहे हो फिर जब हमारे कोर्स में नहीं है? क्यों एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो हमारे परिवार पे? समझ रहे? इसलिए तो ये बिल्कुल आपने सही कहा सर. साइन 45 माइनस 30 और साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी. क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं आपका, देखो दिस sin 2 थीटा इज इक्वल टू व्हिच यू आर लुकिंग 2 sin थीटा cos थीटा. ये जी बोलिए 30 माइनस 15 तो जाएगा. 30 माइनस 30 माइनस 15. 15 तो तब लिखेंगे ना जब आपके पास ये वैल्यू यहाँ हो. 15 तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट्स व्हाई. या तो 60 माइनस 45 यू कैन राइट, या 45 माइनस 30 यू कैन राइट. समझ गए? देखो sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा को यू कैन राइट sin थीटा प्लस थीटा. देखो वेयर a इज इक्वल टू बी थीटा है और b इज इक्वल टू बी थीटा है. देखिए थीटा. तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड. sin a प्लस b इज इक्वल टू देखो sin a cos b प्लस cos a sin b. दिस फॉर्मूला a is also theta, b is also theta. So that is sin theta, this is cos theta plus this is cos theta and sin theta. One sin theta cos theta, one sin theta. अब इसमें कभी बार बच्चों को ये देखो तो प्लस में आपका यू कैन ओनली रिप्लेस देम आपका, क्योंकि साइन चेंज नहीं किया. आगे लिख वन साइन थीटा cos थीटा, वन साइन थीटा cos थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. पहले तो फॉर्मूलों का तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए, विच इज नोन एज योर ट्रांजेक्शन. जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल, तब किताब पढ़ाने का मजा आता है. मैंने करा दिया एनसीईआरटी के, अब बच्चा लगा हुआ फॉर्मूले. अब ये क्यों? वाई वी आर डूइंग इट इन द बिगिनिंग. क्यों आप जो है 2-3 दिन से इसको कर रहे हैं. एक हफ्ते में अगर आपने ये याद कर लिया, मुझे आगे जाकर के आपको समझाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी. क्वेश्चन के एसेट के लिए देखिए अब तो एक ही होगा. उसके बाद अब जैसे
सी। अब जैसे इसी का एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल cos 2 थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई कैसे? एंड सो मेनी क्वेश्चंस आई वाज लुकिंग इन योर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में, वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपका काम बन जाता है। अब ये किसने बताया, क्यों बताया, किस लिए बताया? पूरी WH फैमिली अगर आपका सरकार या आपकी वो क्या नाम कहते टीचर खड़ा, मैंने तो बताया नहीं, तूने ने बताया क्या, तो हम पढ़ेंगे नहीं सिर्फ के लिए। तो देखो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का मतलब देखो cos थीटा प्लस थीटा होगा, 1 थीटा प्लस 1 थीटा इज 2 थीटा, दिस 2 थीटा इज ब्रोकन, स्प्लिट कर दिया जिसको कहते हैं ये ब्रोकन। आपका देखो ना इनटू थीटा इंटू थीटा। अब आपका देखो ना फॉर्मूला अप्लाइड नाउ cos a plus b is equal to, now देखो this cos a cos b minus sin a sin b। तो देखो a is equal to theta and b is equal to also theta। ये देखिए where this, तो देखो cos theta into cos theta, a and b both are theta, sin theta into sin theta, तो cos theta into cos theta is cos square theta minus sin theta inside। first formula is right। now इसके बाद अब id applied। अब मैंने आपको द फर्स्ट फॉर्मूला मल्टीपल फॉर्मूला आई टोल्ड यू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मैं निकाल दी। अब आपका देखो id अप्लाइड, आई टोल्ड यू आपका ना यस्टरडे एंड आपका डे बिफोर यस्टरडे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो नाउ when this one is going on the right hand side which is known your transaction, so ultimately according to the transaction it can be written up another way। So sin square theta it is going on the right hand side, so the plus sign is going to be converted into minus। So the in place of cos square theta if you are writing 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, and this sin square theta is already you have, so this 1 minus minus 1 sin square theta and minus 1 sin square theta is 2 sin square theta। कोई मुझे कहता ना सर आप डेमोस्ट्रेशन देंगे, व्हाट आई से डेमोस्ट्रेशन बेवकूफ देते हैं। मैं थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही पढ़ाता हूं, आप मेरे पिछले वीडियो देख लो, अब तो 1700 वीडियो बन गए इन साल में, एक साल में मेरा वही। तो मैं कहता हूं कोई साबुन तो बेच नहीं रहा हूं, मैं शैम्पू बेच नहीं रहा हूं, ऐड देखेंगे आज धोएंगे कल बताएंगे सर आप। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई, ना मैं खी कर सकता ना खा कर सकता हूं, मेरा स्टाइल ही ऐसा पढ़ाने का। जब सकली भगवान ने रोने वाली दे रखी है तो कितना हंसूंगा, और फिर मैं हंस करके यहाँ कोई मैंने जैसे होता कोचिंग सेंटर्स में आज पार्टी मनाएंगे, आज बर्थडे मनाएंगे, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपने को 9th भी पढ़ानी है, 10th भी पढ़ानी है, 11th भी पढ़ानी है, 12th भी पढ़ानी है, सिंपल सी बात है। 11th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ 11th 12th को मैं आपका मैथ पढ़ाता हूँ, आपको 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या? आप समझ देखिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, ये आपका आगे थर्ड वन। नाउ cos 2 theta is equal to, देखो again you write this cos square theta minus sin square theta। now so your id was sin square theta plus cos square theta equal to 1। so now sin square theta, अब now देखो this sin square theta equal to, you can write 1 minus cos square theta। so now देखो this, तो cos square theta is it's in its place minus, ये minus है, थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिएगा। now left right parenthesis के अंदर you will write in place of this sin square theta 1 minus देखो आपका cos square theta। so now cos square theta minus plus का minus और minus minus का देखो आपका plus, तो 1 cos square theta plus 1 cos square theta 2 cos square theta minus। अब कई बार बोला sin 60 की वैल्यू निकाल, बच्चे ने, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा। देखो जैसे sin 60 था, sin 60 को आई कैन राइट sin इंटू 230 60
देख लीजिए तभी एक्स्ट्रा भरने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ना देखो दिस, अब नाउ सी साइन 2 थीटा इज इक्वल, आपने क्या किया 2 साइन थीटा कॉस। ये चीजें आज हम नहीं है। जैसे क्या हो रहे, पहले हमारे जमाने में क्या होता था, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट होता था, तो बच्चे का एक पीरियड एग्रीकल्चर का होता था, बच्चा नेचर के साथ जुड़ा होता था, कैसे पेड़ को लगाना है, कैसे खड्डा खोदना है, कैसे खाद मिक्स करनी है, तो नेचर के उतने करीब होता था। घर के अंदर जाकर के कंप्यूटर, घर के अंदर जाकर के मोबाइल, चैटिंग, डेटिंग सब हो रहा है, लेकिन सिर्फ अगर कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में तो पढ़ाई नहीं हो रही। ये आप यकीन मानिए अभी, और हमारे जैसे मेरे जैसे ईमानदार आदमी को कोई पसंद ही नहीं करेगा, ये यकीन मानिए। तो दैट्स व्हाई ये देखिए, अब ये देखो ये हो गया डायरेक्ट वैल्यू लिखी, थोड़ा सा दिमाग लगाया बच्चे ने, अब देखो ना ये हो गया। अब देखो आपका 2 इंटू साइन 30, देखो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपका देखो, तो आपका देखो बहुत पूरा साल पड़ा है हमारे पास, तो ना दिस 2 साइन थीटा एंड आपका देखो cos 30, देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, देख खलास। जो डायरेक्ट वैल्यू थी ना, घर में आपको टाइम मिला ना, आपने एग्जीक्यूट किया ना, अपने दिमाग के दरवाजे खोले ना, तो बस क्लियर। आपको साइन 90 बोला उसने, साइन 90 की वैल्यू आपने कहा 1। अरे खाली बैठे हैं भाई, हम वेले नहीं कह रहा हूं मैं। साइन 60 प्लस 30, ये देखो आपका, अब देखिए आपका साइन, खुरापात करने में क्या जाता है, अगर खुरापात अच्छी है और दिमाग के लिए अच्छी है तो फिर खुरापात करने में क्या जाता है। कोई हम किसी को हट तो ना करें, हम तो अपने दिमाग के जो ढक्कन बंद है ना वो खोल रहे हैं। तो ये देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किया देखो अपना, देखो वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो 60 डिग्री एंड b इज इक्वल आपका देखो 30 डिग्री। तो देखो आपका नाम दिस, अब साइन 90 को आपने क्या लिखा, व्हाट यू हैव रिटन साइन 60 प्लस 30 एंड व्हाट यू आर यूजिंग हियर, तो देखो ना साइन 60 cos 30 प्लस cos आपका देखो 30 और साइन 60, cos साइन 60 √3/2, आपका cos 60 √3/2, देखो 60 एंड 30 बोथ आर सेम ना, प्लस cos 30 नहीं cos 30 और साइन 60, देखो ये cos ए साइन ए cos बी, तो ओके cos ये कितना हुआ, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो √3 कंप्लीट थिंग बाई 4 और प्लस √3 4, ये देखो तो ना 3 + 3 6 बाई 4, अब पहले ठीक। देखो अब मैंने गलती की है तो मेरे को पकड़ो ना, जबकि साइन 90 तो 1 होता है, तो ये 1 क्यों नहीं आ रहा, देखो जरा चेक करो, खाली मेरी बात में हाँ पे हाँ मत मिलाओ। साइन 30 साइन 60 cos 30 साइन 60, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, लो चल अब आप भी पकड़ना सीखो ना, गलती पकड़ना सीखो भाई। द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, साइन 30 मैंने साइन 60 प्लस 30 किया, मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए इज इक्वल टू मैंने कहा 60 डिग्री जी, साइन ए कॉस बी माइनस नहीं, ए में ए प्लस बी में माइनस नहीं होता, प्लस होता, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, देखो यहाँ पे गलती पकड़ो मेरी, अरे सर जब ये ए यहाँ आ गया तो ये cos 60 नहीं होगा और sin 30 नहीं होगा, आ गया समझ में, cos a b प्लस sin a सॉरी cos a sin सॉरी sin a cos b cos a sin b, अब ठीक है, अब ठीक है ना, तो गलती पकड़ना सीखो सर। ये देखो इंटू 1/2, अब देखो ये क्या होगा 1/4, देखो अब आपका देखो ना दिस आपका 4/4 इज, अब मास्टर की गलतियां ढूंढनी सीखो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे। अब हाँ कोई मास्टर तूने मेरी गलती ढूंढ दी बेटा बताता तुझे, तो ये भी नहीं करना बच्चे को,
ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कर्कशता है, लेकिन मैं आपको लेट डाउन थोड़ा करूँ, कभी नहीं। आपका देखो इतने ओल्ड स्टूडेंट्स सबके हैं, कभी नहीं। हाँ वैसे गुस्सा कर कभी आया होगा, अलग बात है, नहीं पढ़ा किसी ने, लेकिन पूछने में तो मुझे बड़ा मजा आता है, जितनी बार आप पूछेंगे। इज इट क्लियर? फाइन, एनी डाउट? तो देखो ये दैट्स वाई, इसलिए ये आपके एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाते हैं। तो देखो अब आप कहिए, हाँ इसमें एक आपका मैं मिसिंग कर दिया, देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके इसलिए फॉर्मूलों की एग्जीक्यूशन किस लिए इंपॉर्टेंट है आपका, देखो ना जैसे वही लकीर के फकीर नहीं, हम तो एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, हमने तो खाली पास ही होना है। मास्टर भी कह रहे मैं 3 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर देता हूँ। मुझे तो देखो, मुझे तो फिजिक्स भी पढ़ानी है सर, मुझे आपका नाम देखो दिस केमिस्ट्री भी पढ़ानी है सर, एंड मुझे आपका मैथ भी पढ़ाना है। 10th में बैठे आप, 10th में फिजिक्स लगभग 4 to 5 बुक्स से पढ़ते हैं, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल शामिल नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ये मैथ आपके लगभग मिनिमम 12 होंगी, तो मैक्सिमम आपका 18 भी हो सकता है, और केमिस्ट्री भी वही 4 to 5 बुक्स। इनको थोड़ा सा छांटने में आपका कितना पूरा साल लग जाते हैं, लेकिन यह है कोर्स सिलेबस। अगर आपने इतनी डीपली, अगर पहले से ही शुरुआत से आप डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में कोई लोड ही नहीं होगा। अब आपने कहा थोड़ा यूं पल्ले पलटने वाले एग्जाम के दिनों में साल भर पढ़ा नहीं, जो बैक आती है बच्चों की या जो रीटेस्ट की नौबत आती है, उसका रीजन भी यही है। कुछ स्कूल वाले बेहाल हैं, तो कुछ माँ बाप भी बेहाल हैं, और कुछ उनका ट्यूशन लगा दिया, कोचिंग में भेज दिया, वो भी बेहाल है। जब तीनों बेहाल हो जाते हैं तो फिर बे हटा दो तो उसका क्या हाल होता है। इस वक्त के लिए तो आप बिल्कुल, तो ये थे आज एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे, ये सारे मैंने आपका 3 दिन लगा दिए। अब कल से मैं आपकी एक्सरसाइजेस आपको शुरू करूंगा, तो बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखिए मैथ, जहां आप बात करते हैं मैथ्स, तो मैथ्स में सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है। आइदर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट, जो आज के बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार व्हेन आई वाज आपका जस्ट स्टैंडिंग आपका इन फ्रंट ऑफ माई कोचिंग अर्ली इन द मॉर्निंग्स, सम चिल्ड्रंस दे यूज्ड टू गो, सर इसका मतलब क्या हो, वो चाहे मेरे पास पढ़ता ही नहीं है, तो तब मुझे लगता है यार ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं हम, खाली टाई पहन करके बच्चों को स्कूल में मंगवा रहे हैं। ना। दूसरे नंबर पे आपकी स्किल्स क्या है, ये डेवलप करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे मैथ में ओटी जो होती ऑन ट्रांसपोजिशन, जो दिस इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शंस। फिर आपका 4th नंबर पे आपका नाम फॉर्मूला, फॉर्मूला भी रिक्वायर्ड, ये नहीं कि जहां मर्जी आ रही उसको लिखते। जब ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप चलेंगे तो आपका नाम डेफिनेटली व्हाट यू वांट इन एग्जाम मींस व्हाट एवर यू हैव रेड thoroughly you can आपका write down in an answer sheet the perfect answer, और उतना ही जवाब दीजिए जितना पूछा गया है। ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। ये नहीं कि दिल्ली से जाते हैं, उसमें मुरादाबाद से भी जाते हैं, आगे से फ्लाईओवर से नीचे घुस जाते हैं, आगे नरोरा आता है एक आपका पावर प्लांट, वहां से अंदर चले जाते हैं, कभी कभी अलीगढ़ से भी जाते हैं। ये नहीं पूछा है, टू द पॉइंट यू गिव द आंसर। 1 मार्क्स का है इधर, दैट इज अबाउट 2 मार्क्स, दैट इज अबाउट 3 मार्क्स, दैट इज अबाउट 4 मार्क्स,
5 मार्क्स 6 जितने का भी हो, लेकिन उसकी उतनी सी सीरीज है। अब सपोज साइन 60 की वैल्यू √3/2, एक उदाहरण के लिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आपने इतना लिख दिया तो कौन बेवकूफ आप इसको 2 में से 2 दे देगा, और जो दे रहा है आपको आज बोर्ड के एग्जाम में, इसका मतलब वो भी मूर्ख है जिसने आपको दिया। वाई यार, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको जरा अगर ऐसे करोगे, उसमें फॉर्मूला लिखोगे, तो तब जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपका रहा हूं, आपको ये मिलना चाहिए। ये अप्रोच होती है इनकी पढ़ाई की। इसीलिए ऑफलाइन एंड लॉन्ग वीडियोस, इसीलिए आज का बच्चा है उनका मुझे शॉर्ट चाहिए। ये थोड़ा होना कि जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, उन्हें आज मैंने गहत की दाल बनाई, आज मैंने बिरयानी बनाई, ये बिरयानी थोड़ा है, ये तो बिरयानी की तरह बनाओगे तो बिरयानी बन जाएगा आपका, जो आजकल के बच्चों का बन रहा है। माँ बाप इससे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी क्या घर चल के आएगी? नौकरी जाने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट बुक्स का नॉलेज होगा, फॉर्म भरेगा, एग्जाम देगा, तभी तो आपका सेलेक्ट होगा या नौकरी आएगी। मोदी साहब मेरे बेटे ने MBA कर लिया, जरा नौकरी भेजो, इसने B.Tech कर लिया, मोदी साहब थोड़ा देंगे। वो तो आपका ना, वो रोजगार को बढ़ा सकते हैं, दे कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। वेयर यू हैव टू बी एम्प्लॉयड, वो आपको सोचना है। आपकी कैटेगरी क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका स्किल क्या है, आप किसी चीज को कितने अंडरस्टैंडिंग, कितनी बेहतर समझ रहे हैं, वो चीजें कामयाब। कामयाब वही है जिसने मेहनत की। अब हो सकता है कि अंधे के हाथ बटेर भी लग जाती कभी कभी, लेकिन वो लोग ज्यादा सक्सेस नहीं होते। या तो फिर उनको जब वो ऊपर पहुंच गए, उनको नीचे से मेंटेन करने वाला, कि मेंटेन कैसे करेंगे वो बताने वाला हो, तब तो वो जिएगा। इसीलिए जो जितनी जल्दी पीक में चढ़ेगा, वो उतनी जल्दी स्लाइड नीचे करेगा। इसीलिए बाय एंड बाय, 1 by 1 आप काम करिए, मैं आपके साथ। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज।